बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। दुम्हानी केलेजोड़ा बॉयज हाई स्कूल के सभी काम प्रधानाध्यापक को करने पड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पश्चिम बंगाल में 26,000 शिक्षकों की नौकरी चली गई है। पश्चिम बर्धमान जिले के बाराबनी विधानसभा क्षेत्र में स्थित दुम्हानी केलेजोड़ा बॉयज हाई स्कूल में 4 शिक्षकों और 1 गैर शिक्षक कर्मचारी की नौकरी चली गई है। स्कूल के प्रधानाध्यापक मृणाल ज्योति गांगुली ने बताया कि उनके स्कूल के 4 शिक्षक और 1 गैर शिक्षक कर्मचारी जो 2016 के पैनल में थे, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के कारण नौकरी से हटा दिए गए हैं। इसके साथ ही स्कूल के ग्रुप डी कर्मचारी स्कूल नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण उन्हें और अन्य शिक्षकों को स्कूल की घंटी बजानी पड़ रही है। प्रिंसिपल को अपने काम के साथ साथ सभी तरह के अन्य काम भी करने पड़ रहे हैं। बुके देखा गেল ঠিকই, তবে অ্যাকচুয়ালি আমাদের স্কুলে হেডমাস্টার বহুদিন ধরেই ঘন্টা মারছে। কারণ আমার দুটি গ্রুপ ডি স্টাফ ছিল, একটি স্টাফ অক্টোবর মাস থেকে শরীর খারাপের জন্য আসছে না, একটা তো আসছিল মাঝে মাঝে সে কামাই করতো, সে সময় আমাকেই ঘন্টা মারতে হয় কিংবা আমার শিক্ষকদের ঘন্টা মারতে হয়। আর এখন তো সুপ্রিম কোর্টের অর্ডারে এদের 2016 ক্যান্ডিডেট হিসাবে এদের এখন আপাতত অচল অবস্থা। এখন ঘন্টা আমাকে তো বটেই, ক্লার্কের কাজ, হেডমাস্টারের কাজ, অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচারের কাজ, সমস্ত কাজ আমাকে দিচ্ছে। যে চলে গেল তার নামটা কি ছিল? বিশ্বজিৎ মুর্মু, গ্রুপ ডি। টোটাল কজন গেছে এখানে? 4 জন টিচার। কেলেজোড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের 10ম শ্রেণীর ছাত্র। একটি কেসের জন্য আমাদের বিদ্যালয়ে 4 জন শিক্ষক এবং একজন অশিক্ষক কর্মচারী চলে গিয়েছেন বা তাদের যেতে হয়েছে, তারা চাকরিচ্যুত হয়েছেন। তো এই সময় আমাদের যে অশিক্ষক কর্মচারী ছিলেন, মানে বিশ্বজিৎ দা, যিনি ঘন্টা বাজাতেন, পিরিয়ড শেষ হওয়ার পর ঘন্টা বাজাতেন, তো তিনি যেহেতু না থাকায় ঘন্টা বাজানোর খুব অসুবিধা হচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হেড স্যার সমস্ত কাজ ছেড়ে, সমস্ত অফিসিয়াল কাজ ছেড়ে তিনি নিচে এসে ঘন্টা বাজাচ্ছেন। সত্যি আমাদের স্কুলে সত্যি মানে ঘন্টা বাজাবার জন্য হেড স্যারকে আসতে হচ্ছে, এটা খুবই। आज कस्बा में प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया। इसके खिलाफ जब अग्निमित्रा पाल के नेतृत्व में कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था तो 8 विधायकों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके खिलाफ आज शाम को चित्रा मोड़ पर भाजपा की तरफ से व्यापक विरोध प्रदर्शन किया गया। टायर जलाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिक्षकों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और भाजपा विधायकों को गिरफ्तार करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी भाजपा नेताओं का कहना था कि टीएमसी नेताओं के भ्रष्टाचार के कारण आज शिक्षकों और बंगाल की शिक्षा व्यवस्था अंधकार में है। इन भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। কোর্টের নির্দেশে যে 26,000 শিক্ষক নিয়োগ বাতিল করা হয়েছিল এবং সেই শিক্ষক যখন প্রতিবাদ জানায়, রাস্তার মাঝখানে তৃণমূল সরকারের এবং আমাদের মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পুলিশ প্রশাসন সেই শিক্ষকের ওপর লাঠিচার্জ করে। আমরা কোন দেশে বাস করছি? আমরা কোন পশ্চিমবঙ্গে বাস করছি? প্রতিবাদের ভাষাটুকু আজকে আমাদের মধ্যে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। আজ যাদেরকে আমাকে সমাজের গুরু বলে আমাদেরকে বলি, যারা আমাদেরকে তৈরি করছে, যে শিক্ষকরা আমাদের সমাজকে তৈরি করছে, সেই শিক্ষকের উপর অত্যাচার হচ্ছে। আমরা জিনিস মানতে পারি না। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর ইমিডিয়েট আমরা পদত্যাগ চাই। কিছুদিন পর দেখতে পারবো আরজি করার মতো আবার জাস্টিস করে একটা ঝান্ডা নিয়ে বেরোবে। মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা বলতে চাই, আপনার বিরুদ্ধে, আপনার জন্য এই পশ্চিমবঙ্গের এই অবস্থা। আপনার বিরুদ্ধে আমরা রাস্তায় নামবো, আগামী দিনেও নেমেছি এবং আগামী দিনে এই আন্দোলন আরো তীব্র থেকে তীব্রতর হবে। আজকে কি করলেন এখানে? আজকে আমাদের বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পালদি সাথে আরও 7 জন এমএলএ বিধায়িকাকে অ্যারেস্ট করা হয় লালবাজার থানাতে। তারা প্রতিবাদ করতে গেছিল যে আমাদের শিক্ষকদের, যারা 26,000 শিক্ষক নিয়োগ বাতিল করা হয়েছিল, তার প্রতিবাদে যে শিক্ষকরা যে কর্মসূচি রেখেছিলেন, সেই কর্মসূচির ওপর লাঠিচার্জ করা হয়। সেই প্রতিবাদের ভাষাটুকু যখন কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, আমাদের বিধায়িকারা সে প্রতিবাদ জানাতে যায়। সেই সময়ে 8 জন বিধায়িকা সমেত আমাদের কিছু কার্যকর্তাকে লালবাজার থানাতে বন্ধ করে অ্যারেস্ট করে রাখা হয় এবং মমতা ব্যানার্জি তার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদটুকু, ভাষাটুকু নেই। আমরা যখন প্রতিবাদ করতে যাই, সেখানে পুলিশ আমাদের
আমাদের ওপর লাঠিচার্জ করে। মমতা ব্যানার্জি নিজেই মুখ্যমন্ত্রী, নিজেই অল ইন অল, নিজেই আর্জি করে সব কিছু আর্জি করে ঝান্ডা যখন তিনি জাস্টিস ফ্ল্যাগ নিয়ে যখন বেরোয় তখন বলে আমি জাস্টিস চাইছি। তিনি কার কাছে জাস্টিস চাইছেন? তিনি কি জনতার কাছে জাস্টিস চাইছেন? জাস্টিস তো আপনার কাছ থেকে চাই, আপনার কাছ থেকে আমাদের সুরক্ষা চাই, আপনাদের গুন্ডার থেকে আমাদের সুরক্ষা চাই। এই পশ্চিমবঙ্গবাসী আপনাকে ছেড়ে কথা বলবে না। 26-এ আসছে দিন, 26-এর ভোটের সময় আপনাকে ঠিক সময় ঠিক বুঝিয়ে দেওয়া। আপনার নাম? আমার নাম সোমনাথ মন্ডल, आसाम साउथ प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने पश्चिम बंगाल में हड़कंप मचा दिया है। 2016 में एसएससी द्वारा नियुक्त 26,000 शिक्षकों की नौकरी को कोर्ट ने रद्द कर दिया। कोर्ट का कहना है कि इस भर्ती में घोटाला हुआ था और योग्य अयोग्य शिक्षकों को अलग नहीं किया जा सका, जिसके चलते पूरा पैनल खारिज कर दिया गया। इस फैसले के खिलाफ आज आसनसोल में शिक्षकों और शिक्षिकाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। योग्य शिक्षक शिक्षिका अधिकार मंच के बैनर तले सैकड़ों शिक्षकों ने आसनसोल के एसपी गुराई रोड पर स्थित डीआई कार्यालय तक रैली निकाली। रैली से पहले ये सभी आश्रम मोड़ पर जमा हुए और कुछ देर तक सड़क जाम की। इसके बाद डीआई कार्यालय पहुंचकर इन्होंने गेट पर ताला जड़ दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने कहा कि वे अपनी मेधा के बल पर नौकरी हासिल करने वाले योग्य लोग हैं। उनका आरोप है कि एसएससी राज्य सरकार और शिक्षा विभाग की नाकामी की वजह से उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा। शिक्षकों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। शिक्षकों का गुस्सा सभी राजनीतिक दलों पर फूटा। उनका कहना है कि माकपा, बीजेपी और टीएमसी सभी ने उनके साथ सिर्फ खिलवाड़ किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि वे इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपने हक के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट के अनुसार 3 तारीख को जो वर्डिक्ट आया, हमारी नौकरी चली गई है। आप पूछेंगे आप लोग कौन हैं, तो हम लोग 2016 पैनल के योग्य शिक्षक और शिक्षाकर्मी हैं। एक वर्डिक्ट के कारण, जिसमें इस वर्डिक्ट में खुद सीजेआई ने डिवाइड कर दिया है कौन टेंटेड है और कौन अनटेंटेड है, उसके बाद भी सभी लोगों की नौकरी चली गई। उस टेंटेड लोगों को बोला गया 12.5% इंटरेस्ट के साथ में सैलरी रिटर्न करने को, लेकिन हमारे अगेंस्ट में एक भी हमारे अगेंस्ट में शिकायत नहीं है। हमारा ओएमआर हमारे पास में है, फिर भी फ्रेश लिस्ट ना देकर आज हम लोगों का भविष्य को अंधेरे में डाल दिया गया है। वो तो मिला दे रही है दोनों को एक साथ, योग्य और अयोग्य दोनों को एक साथ मिला दे रही हैं। हमें बोला गया आप वॉलंटरी सर्विस करिए। वॉलंटरी सर्विस करेंगे मैडम, घर कहाँ से चलेगा हमारा? किसी का लोन चल रहा है, किसी का ईएमआई है, किसी का घर चल रहा है, किसी के माता पिता बीमार है, घर कैसे चलेगा? वॉलंटरी सर्विस से घर नहीं चलता सर। और क्यों वॉलंटरी सर्विस करेंगे? क्या गलती है हमारी? मिस्टेक क्या है हमारा? पढ़ाई करके हम लोगों ने नौकरी लिया, मेरिट पे नौकरी लिया, ये हमारी गलती है? या हमारी गलती है कि हम पश्चिम बंगाल में हैं? डीआई ऑफिस में क्या किया? डीआई ऑफिस हम लोग घेराव कर रहे हैं, डीआई ऑफिस में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और गेट बंद करने का, ताला जड़ने का काम किया हम लोगों ने आज। सुदीप पांडे, जेके नगर हाई स्कूल, भूतपूर्व शिक्षक। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने आज सुबह दुर्गापुर के विधान नगर संतोष क्लब मैदान में मॉर्निंग वॉक के दौरान राज्य के पुस्तकालय मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग उठाई। इस मौके पर उन्होंने तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर भी जमकर निशाना साधा। दिलीप घोष ने सिद्दीकुल्ला चौधरी को सांप्रदायिक करार देते हुए कहा, सिद्दीकुल्ला चौधरी जैसे लोग जो देशद्रोह और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं, उनकी वजह से ही ममता बनर्जी सत्ता में आई है। आज ये लोग टीएमसी के लिए बोझ बन गए हैं, लेकिन ममता दीदी मजबूरी में इन्हें सिर पर बैठाए हुए हैं। मैं मांग करता हूं कि देशद्रोह के कानून के तहत सिद्दीकुल्ला चौधरी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इस मॉर्निंग वॉक में दुर्गापुर पश्चिम के बीजेपी विधायक लक्ष्मण चंद्र घुराई सहित पार्टी के कई अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। মন্ত্রিসভা যা যা ডিসিশন নিচ্ছে সব অবৈধ, কোর্টে প্রমাণ হচ্ছে। সেখানে ডিজি নিয়োগ করার যে পদ্ধতি আছে সেটাকে বাইপাস করতে গেলে আবার ডিজিরও সমস্যা হবে, এই সরকারের সমস্যা হবে। মমতা ব্যানার্জির সরকার বা উনি নিজে কোনো সংবিধান, কোনো সিস্টেম, কোর্ট কিছুই মানেন না।
তো তার আমলে সবই সম্ভব, কিন্তু তার ফল ভোগ করতে হবে এখানকার দেশে এই সমাজের লোকেদের। আচ্ছা, দিয়া জোট কোথায় সেটা খুঁজে বার করুন। দ্বিতীয় কথা, পার্লামেন্টে যখন ডিসকাশন হয়েছে, যার বক্তব্য ওখানে বলা উচিত ছিল, যারা সবচেয়ে বেশি চেঁচিয়েছেন, তিনি রাহুল গান্ধী এখানে আসেননি বক্তব্য রাখেন, তার বোন প্রিয়াঙ্কাও তিনি এমপি, তিনিও কোনো বক্তব্য রাখেননি। বাকি খোকাবাবু যে আছেন এখানকার উত্তরপ্রদেশে, অখিলেশ বাবু, তিনি কি ভাষণ রেখেছেন? উত্তরপ্রদেশের গল্প বলেছেন, ওখানে যোগী নিয়ে কথা বলেছেন। আরে ওয়াকফ বোর্ড কোথায়? যদি তোমার কাছে যুক্তিতর্ক আছে বলা উচিত ছিল। সব টাইটাই ফিস, এখন কিচ্ছু নাই। এদের ওয়াকফ বোর্ড হয়ে গেছে, আরো অনেক কিছু হবে। এদের বক্তব্যের জন্য কি করতে পারে, আর কিচ্ছু করতে পারবে না, কোনো কাজ করতে পারবে না। যে কটা সরকার বিরোধীতে আছে দেখুন, 1-2 বছরের মধ্যে মোটামুটি জলাঞ্জলি যাবে। আচ্ছা, রায় চলো, হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। দাদা, এই মাসে না, বেতন সই পাবে? করবে কি? যতক্ষণ না কোর্ট বলছে ওদেরকে জয়েন করতে, জয়েনও করতে পারে না। হ্যাঁ, যেটা মমতা ব্যানার্জি বলেছেন, ভলেন্টিয়ারি সার্ভিস দাও, দিতে পারেন, কিন্তু বাড়িতে হাঁড়ি না বসলে ভলেন্টারি সার্ভিস করবে। ছেলে মেয়ে স্কুলে যেতে পারবে না, ফি দিতে পারবে না, সই না বেতন, আনঅথরাইজ তো ওরা ইনলিগাল হয়ে গেছে। যেন মমতা ব্যানার্জি এখানে ভাষণ না দিয়ে, লোককে বোকা না বানিয়ে, কোর্টে গিয়ে বলুন, 18,000-এর লিস্ট নিয়ে বলুন যে এরা বৈধ, এদেরকে চাকরিতে ফিরিয়ে আনা হোক। উনি বলুন, তাহলে সম্ভাবনা আছে। আর এটাই সম্ভাবনা, একটাই রাস্তা, সে রাস্তায় হাঁটা উচিত। আবার কোর্টে গিয়ে শুনানি করা উচিত, কারণ কোর্টও এই টিচারদের কথা শোনেনি। सालानपुर से सनसनीखेज अपहरण कांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मंगलवार को मवेशी व्यापारी शमशुल अंसारी के अपहरण के कुछ ही घंटों के भीतर सालानपुर थाना पुलिस ने 4 आरोपियों को धर दबोचा था। आज बुधवार को इन चारों को आसनसोल अदालत में पेश किया गया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान कार्तिक धिबर, अभिषेक दास, सूरज साव और मनीष साव के रूप में हुई है। ये चारों झारखंड के मिहिजाम इलाके के रहने वाले हैं। गौरतलब है कि सालानपुर थाना क्षेत्र के काली पाथर निवासी मवेशी व्यापारी शमसुल अंसारी किसी कार्य से झारखंड जा रहे थे। इसी दौरान उनका अपहरण कर लिया गया। अपहरण की सूचना मिलते ही सालानपुर थाना और रूपनारायणपुर चौकी की पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने तुरंत सक्रियता दिखाई और कुछ ही घंटों में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही मवेशी व्यापारी को सुरक्षित बचा लिया गया। इस तेज कार्रवाई के लिए स्थानीय लोगों ने पुलिस की जमकर तारीफ की। आपको बता दें कि अपहरण में इस्तेमाल की गई 4 पहिया गाड़ी को रूपनारायणपुर फाड़ी लाया गया था। इस दौरान उत्तेजित भीड़ ने गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। रानीगंज के प्रसिद्ध स्वर्ण व्यवसायी प्रदीप कुमार नंदी के बागान बाड़ी के चारों ओर आग लगने की घटना से रानीगंज के कुमार बाजार इलाके में सनसनी फैल गई। इस घटना के बारे में जानकारी मिली है कि आज रात करीब 7 बजे इस आगजनी की घटना को स्थानीय निवासियों ने देखा। इसके बाद उनके परिवार के सदस्यों ने इसकी सूचना घर के अन्य लोगों को दी, जिसके बाद पुलिस को खबर दी गई। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर दमकल विभाग की एक गाड़ी पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। इस दौरान इलाके में आग एक बड़े हिस्से में फैल गई थी। दमकल विभाग की गाड़ी घटनास्थल तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। स्थानीय लोगों का दावा है कि जिस जगह पर ये आग लगी वहां पानी की पाइपलाइन ले जाने की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। इसके अलावा दमकल विभाग की जो गाड़ी वहां पहुंची वो बहुत छोटी थी और तंग गलियों की वजह से उस जगह तक नहीं पहुंच सकी, जिसके कारण आग लगातार बढ़ती रही। पश्चिम बंगाल बस्ती विकास समिति ने कुल्टी BLRO कार्यालय में 7 सूत्री मांगों के साथ एक ज्ञापन सौंपा। इससे पहले न्यामतपुर के कुलतोड़ा से संगठन के कार्यकर्ता और समर्थक एक जुलूस निकालकर कुल्टी BLRO कार्यालय पहुंचे। सरकारी जमीन पर रहने वाले लोगों को जमीन का अधिकार पत्र देना होगा। लंबे समय पहले सरकार द्वारा दी गई पट्टा जमीन को रिकॉर्ड करना होगा और खजाना भूमिकर जमा करने की व्यवस्था करनी होगी। सर्वे के माध्यम से सरकारी जमीन पर रहने वाले परिवारों की सूची तैयार करनी होगी। इन 7 सूत्री मांगों के साथ आज दोपहर 4 बजे आसनसोल के कुल्टी BLRO कार्यालय में पश्चिम बंगाल भूमि विकास समिति की ओर से एक ज्ञापन सौंपा गया। आसनसोल के चेलीडंगाल इलाके में आज कोलेरी मजदूर सभा की वार्षिक साधारण सभा हुई। इस सभा में एटक के प्रदेश महासचिव विप्लव भट्ट और कोलेरी मजदूर सभा के महासचिव गुरुदास चक्रवर्ती सहित कई नेता मौजूद थे। सभा में केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी हुई। नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने 44 श्रम कानूनों को खत्म
कर 4 नए श्रम कोड लागू किए हैं जो मजदूरों के हितों के खिलाफ है। विप्लव भट्ट और गुरुदास चक्रवर्ती ने कहा कि इन नीतियों से ठेका मजदूरी बढ़ रही है और श्रमिकों के अधिकार छीने जा रहे हैं। 5 मई को कोलकाता में बड़ा सम्मेलन होगा। हम 4 श्रम कोड रद्द करने और समान वेतन की मांग उठाएंगे। 20 मई को देशव्यापी हड़ताल होगी। मजदूरों को एकजुट होना होगा। यहाँ कोलरी मजदूर सभा के जनरल सेक्रेटरी गुरुदास चक्रवर्ती, जॉइंट जनरल सेक्रेटरी अनिल सिंह, शैलेंद्र सिंह, सचिव अखिलेश सिंह, राजेंद्र राम, दिनेश सिंह, अमर सिंह आदि मौजूद थे। आसनसोल के काली पहाड़ी मोड़ इलाके से एक बड़ी दुर्घटना की खबर सामने आई है। यहाँ 2 ट्रकों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई जिसमें एक ट्रक का चालक अपने कैबिन में फंस गया। पुलिस और ट्रैफिक गार्ड की त्वरित कार्रवाई से उसे सुरक्षित निकाला गया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि राजस्थान से कोलकाता की ओर जा रहे 2 ट्रक काली पहाड़ी मोड़ के पास पहुंचे। सिग्नल पर लाल बत्ती होने की वजह से एक ट्रक रुक गया, लेकिन पीछे से आ रहे दूसरे ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में आगे वाले ट्रक का चालक अपने कैबिन में फंस गया। काफी कोशिशों के बावजूद जब चालक को बाहर नहीं निकाला जा सका तो आसनसोल साउथ ट्रैफिक गार्ड ने हाइड्रा मशीन की मदद ली। लंबी मशक्कत के बाद चालक को कैबिन से सुरक्षित निकाला गया। घटना की सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। इस हादसे में घायल चालक को इलाज के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेजा गया है। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।